एक ओंकार, एक ओंकार, सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। तेरा शुकराना तेरा शुकराना। वाहे गुरु वाहे गुरु। जपजी साहब दी विचार आज दी पौड़ी 30 नंबर पौड़ी है। 28, 29, 30, 31 ये 4 पौड़ियां विच गुरु महाराज जोगियां नूं मत दे रहे हैं। कुड़ियार तो सचियार बनन दी राह दसदे होए सानू भी राह दसदे हैं कि कर्म कांडां दे नाल, मुंदरा पाण दे नाल, खप्पर फड़न दे नाल, झोली रखण दे नाल, विभूत लगाण दे नाल, गोदड़ी रखण दे नाल, डंडा रखण दे नाल जो है कुड़ियार तो सचियार नहीं बनते। नाम सिमरन दे नाल, नाम दी जाचना दे नाल ही जो है कुड़ियार तो सचियार दी राह जो है सफल होंदी है। ये असी 28 पौड़ी अंदर समझिया। गुरु महाराज कहते हैं कि असी जो है सानू भी की सिक्ख्या दिंदे हन कि संतोख रखना है, श्रम करना है और अपनी मौत नू हमेशा याद रखना है और ज्ञान दी विभूत लगा के रखनी है। ध्यान दी विभूत लगावांगे, जिथे ध्यान होएगा उत्थे ही ज्ञान होवेगा। तो कहते हैं हमेशा जो है अपने अंदर ध्यान दी विभूत लगा के रखो, ध्यान नू चेते रखो। बाणी पढ़न लग्या, पाठ करन लग्या, सिमरन करन लग्या ध्यान उत्थे होएगा तो ज्ञान दी प्राप्ति होएगी। तो ध्यान एक पौड़ी है, जिवें कि असी पहले भी समझिया कि पंचा का गुर एक ध्यान। तो एक जो एक ध्यान है उसदे नाल ही ज्ञान दी प्राप्ति होंदी है। ज्ञान दे नाल ही जो विस्माद आंदा है, विस्माद दे नाल भक्ति आंदी है, भक्ति के बाद उपासना बनती है, नाम सिमरन बनता है। ये पौड़ियां हैं, ये सानू गुरु जी समझा रहे सन 28 नंबर पौड़ी दे अंदर कि अपनी मौत नू हमेशा याद रखना और ध्यान लगाना। ये 2 गल्लां दसियां सानू सचियार होण दे राह दियां। 29 पौड़ी भी सानू दसिया कि अपने अंदर दया का भाव रख के जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है, वो ज्ञान कित्थों मिलिया? ध्यान दे नाल ज्ञान मिलिया। सो 28 पौड़ी विच असीं देखिया ध्यान लगाना और मौत नू चेते रखना। उस नाल जो ज्ञान की प्राप्ति होएगी, उस ज्ञान की प्राप्ति नू दया नू भंडारण बना लेना। अपने अंदर दया रखनी
ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਰੂਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਇਆ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਵਰਤਾਣਾ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। 28 ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਆ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। 29 ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚੂਰਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਂਦੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ 29 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ, ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੇ ਨਾਦ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਘਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰੌ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਤ ਦਾ ਡੰਡਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਡੰਡਾ ਹੋਵੇ। ਐਸਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਬਿਖਰੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਡੰਡਾ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਇਤਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਦੀ ਟੁੱਟੇ ਨਾ। ਉਹ ਡੰਡਾ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਰੂਪੀ ਪਸ਼ੂ ਇਹਨੂੰ ਚੋਰ ਲੈ ਨਾ ਜਾਏ, ਪਸ਼ੂ ਚਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਾਡੀ ਜੋ ਖੇਤੀ ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਧਿਆਨ, ਫਿਰ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆਨ, ਫਿਰ ਆਈ ਦਇਆ। ਦਇਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਡੰਡਾ ਹੈ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਡੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜੋ ਅੰਦਰਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ 28 29 ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ। ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ, ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੇ ਨਾਦ। ਉਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਨਾਦ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਾਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਨਾਥ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਥ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਨੱਥੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੂਜਾ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਰਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ, ਆਪਣੇ ਬੜਪਨ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਿਖਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ। ਅਗਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਹਮ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਔਰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ 29 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਸੰਜੋਗ ਤੇ ਵਿਜੋਗ ਤੋਂ ਕਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੋ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਤੋਂ ਕਾਰ ਚਲਾਵੇ, ਲੇਖੇ ਆਵੇ ਭਾਗ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 30 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾरों ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮੂਲ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਮੂਲ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੇ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਚਾरों ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੂਲ ਪੰਕਤੀ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ।
ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। कैसा परमेश्वर है वो जिसदा आद और अंत दा नहीं पता, और जो कदी नाश नहीं होंदा, अविनाशी है, और जो हमेशा ही पवित्र है, दोष रहित है। ऐसे परमेश्वर नू बार बार याद करना और नमस्कार करना। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਏਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਏਕਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹੀ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ मेरा अकाल पुरख, मेरा पिता एका इक्को परमेश्वर है। वो एका दे नाल एका माई जुगत वियाई तिन चेले परवान। एका एक परमेश्वर ब्रह्म रूप और एक माया, माई दा अर्थ है माया, ये दोनों दा मेल होया एका परमेश्वर माई माया। दोनों दे मेल दे नाल जो है माया प्रेग्नेंट हुई, यानी प्रसूति हुई, 3 बच्चे जम्मे, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये 3 जो बच्चे जम्मे, 3 देवता जो जम्मे, ये तिन्ना देवता दे विचों एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान। 3 देवतियां दे 3 गुण ਹਨ, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। ये 3 गुणों वाले 3 देवते हुए जो कि परमेश्वर नहीं ਹਨ, सानू देख नहीं सकते, पर परमेश्वर उन्हां नू देख रहा है, उन्हां दे थ्रू सृष्टि नू चला रहा है। वो 3 देवता ਹਨ, पर मन्ने हुए ਹਨ, पर वो सानू नहीं देख सकते, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ नहीं देख सकते, पर परमेश्वर ਉਹਨਾਂ 3 देवतियां ਨੂੰ देख रहा है और सानू भी देख रहा है। फिर तो समझिए एका माई जुगत भी आई, जुगती दे नाल माया दी प्रसूति हुई। प्रसूति हुंदी है ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਈ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਮਾਇਆ ਸੀ, जिस माया नू परमेश्वर ने रचिया। उस माया दे अंदरों 3 देवता पैदा हुए जो सृष्टि नू चला रहे हैं, पर इन्ना 3 दे उत्ते एक परमेश्वर है जो इन्ना 3 नू चला रहा है। वो परमेश्वर सानू देख सकता है, देवतियां नू देख सकता है, अपने हुक्म दे नाल चला रहा है, पर वो 3 देवते परमेश्वर ਨੂੰ नहीं देख सकते। इनू असी ध्यान दे नाल समझांगे कि ओ माया, जदों असी पाठ पढ़ते हाँ नितनेम दा, आनंद साहब दी 40 पौड़ियां पढ़ते हाँ, तानू असी समझ आंदा है कि त्रिही गुणी संसार ब्रह्म सूता सुतिया रैण विहानी। वो त्रिही गुणी जो माया है, उस माया दे अंदर संसार सुत्ता पिया है। बार बार असी उस माया दे अंदर सो जाते हाँ, जागते हाँ, पाठ करते हाँ, नितनेम करते हाँ, पर बार बार उस माया दे अंदर फिर असी लिप्त हो जाते हाँ किधरे न किधरे। तो माया जो है बड़ी प्रधान है, उस माया नू परमेश्वर ने रचिया है। उस माया जो 3 चेले पैदा हुए हैं, उन 3 गुणा दे अंदर संसार पूरा दा पूरा चल रहा है, कार व्यवहार चल रही है। जो जाग पैंदे हन वो परमेश्वर दे नाल जुड़ जाते हैं। तिही गुणी संसार ब्रह्म सूता सुतियां रैण विहानी, गुर किरपा ते से जन जागे, जिन्ना हर मन वसिया बोले अमृत बाणी। सो असी हुण इस पौड़ी नूं एका माई जुगत वियाई 3 चेले परवान। जो 3 चेले बने वो परवान होए, पर मन्ने होए, सारे संसार विच मन्ने गए कि एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान। एक संसारी है जो पैदा करता है ब्रह्मा, एक भंडारी विष्णु है जिदे भंडार भरे हुए हन, जो सब नू पाल रहा है।
ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ, ਇੱਕ शिव जी जो मौत ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇਵਤਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਐਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ और ठीक है। सब तो ज्यादा शिव दे मंदिर ਹਨ, क्योंकि शिव जो है वो मौत ਦਾ देवता है। शिव पासों लोग डरते ਹਨ, उसकी पूजा ज्यादा ਹੁੰਦੀ है। ब्रह्मा और विष्णु ਦੀ पूजा ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ है, क्योंकि एक सृष्टि ਨੂੰ पैदा कर रहे ਹਨ और पाल रहे ਹਨ। और जो मौत दिंदा है उसਨੂੰ ज्यादा याद रखते हैं लोग, इस करके शिव जी की पूजा और शिव जी के मंदिर बहुत सारे हैं। पर गुरु जी कहते हैं कि ये बिल्कुल ठीक गल है। जिव तिस भावे तिवें चलावे, उन्होंने जिवें चंगा लगता है। किन्नू हुण इत्थे एका दी गल हो रही है, देवतियां दी गल नहीं हो रही। जिव तिस भावे, ये तिस कौन है? एक परमेश्वर है, एका। जिव तिस भावे तिवें चलावे, वो तिवें चलांदा है। किन्नू चला रहा है? तिन्ना देवतियां नू चला रहा है वो। उस तो ऊपर यही समझिया सी असी एक ओंकार, एक ओंकार दे अंदर भी असी यही समझिया सी के ओम आ उ मा, ब्रह्मा विष्णु महेश, पर उसके ऊपर एक परमात्मा है, एक अकाल पुरख है जो सर्वव्यापक है, वो सृष्टि नू चला रहा है। ये असी अगे बीज मंत्र दे अंदर भी समझ के आए हाँ। एक ओंकार दे अंदर हुण इत्थे भी गुरु जी कह रहे हैं, जिव तिस भावे तिवें चलावे। जिस तरह परमेश्वर नू चंगा लगदा है, वो उस तरह इन्ना तिन्ना नू चला रहा है और सारी सृष्टि नू भी चला रहा है। जिव होवे फुरमान, जिस तरह वो फुरमान करदा है, जिस तरह वो हुक्म करदा है, उस तरह ये तीन देवता काम करते हैं। इन्हां दे पास अपना अपना पोर्टफोलियो है, अपनी अपनी फाइल है कि तुसी केड़ा काम करना है। ये सानू देख नहीं सकते, इन्हां दी किरत, ये किरत करते हैं जो इन्हां नू दित्ती गई है, कीर्तिमान हन। पर परमेश्वर दृष्टा है, वो हर समय इन्ना तिन्ना देवतियां नू और सानू देख रहा है। ते कहंदे हन जिव होवे फुरमान, उसके हुक्म दे अंदर सब कुछ हो रहा है। वो वेखे ओ ना नदर ना आवे, बहुता ए विडाण। विडाण कहंदे हन विस्माद। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ध्यान दी, ध्यान दे नाल ज्ञान दी प्राप्ति होई। ज्ञान दे नाल साडे अंदर भक्ति भाव आया, दया भाव आया। असी भंडारण, असी उसनू वंडन वाले बन गए दया भाव दे नाल। और जुगती दा डंडा साडे अंदर, भरोसे दा डंडा असी साडे अंदर असी रखिया। ये पौड़ियां हन सचियार बनन दियां। तो ध्यान, ज्ञान और फिर दया, फिर वंडारा बढ़ना नाम नू, फिर उस तो बाद समझिया कि यकीन रखना, भरोसा रखना, डोले ना, दृढ़ता विच रहिए। और फिर जो है अपनी मौत नू हमेशा चेते रखना। ये समझते हुए उन अगला जो पौड़ी है वो है विडाण, विस्माद दी अवस्था, जिसदे अंदर ज्ञान, ध्यान, दया आ गई, मौत चेते रह गई। उसनू समझ आएगा विस्माद दी अवस्था की है। उसनू हर एक दे अंदर, कुदरत दे अंदर, सृष्टि दे अंदर, फल फूल दे अंदर, हर जीव दे अंदर विस्माद नजर आएगा। उसकी दृष्टि बदल जाएगी जब उसनू एक ज्ञान हो जाएगा। तो कहते हैं बहुता ये विडाणे, बड़ा आश्चर्य है, बड़ा विस्माद है कि वो सानू देख रहा है, पर असी ओनू नहीं देख पा रहे। वो ना
नजर ना आवे बहुता ए विडान। फिर ऐसे परमेश्वर ਨੂੰ नमस्कार है। याद रखिए हमेशा सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। ताई गुरु साहब ने सानू ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਪਜੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੇ ਆਦੇਸ਼। आओ ऐसे परमेश्वर ਨੂੰ याद करिए, नमस्कार करिए, समर्पण करिए। कैसे परमेश्वर ਨੂੰ जिसदा आद और अंत ਦਾ नहीं पता, जो कभी नष्ट नहीं होएगा और जो हमेशा पवित्र है, अनिल है। ऐसे परमेश्वर ਨੂੰ आओ ਅਸੀਂ आदेश करिए। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। आओ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ब्रह्मा विष्णु महेश उपायन। ब्रह्मा विष्णु महेश उपायन, हुक्म चलावन कारा, हुक्म चलावन कारा। वाहे गुरु हुक्म चलावन कारा, वाहे गुरु वाहे गुरु। 31 नंबर पौड़ी। आसन लोए लोए भंडार, जो किछ पाया सो एका वार। कर कर वेखै सिरजनहार, नानक सच्चे की साची कार। आदेश तिसे आदेश, आद नील नाद नाहद, जुग जुग एको वीस। ਅਖੀਰਲੀ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਹਨ। ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ। ਐਸਾ ਜੋਗੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਿਰਫ ਸ਼ਿਵ ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ, ਉਸਦਾ ਜੋ ਆਸਣ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸੋਦਰ ਕਿਹਾ ਸੋਘਰ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਆਸਣ ਹੈ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਆਸਣ ਹੈ। ਉਸ ਆਸਣ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਆਸਣ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਹਰਮੰਦਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਹਰਮੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਸਣ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਧਰਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੂਰਜ ਹਨ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਸਣ ਹੈ। ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ। हर एक लोए का अर्थ है लोक। हर एक लोक दे अंदर उसका आसन है और भंडार भी है। सिर्फ आसन नहीं है। जो कुछ पाया तो एका बार, उसने जो कुछ देना सी इको बड़ी भंडारा भर देता है। वो भंडारा खत्म नहीं होता। वो भंडारा जो है अमुक है, कदी मुकदा नहीं, चलदा रहंदा है। जुगा जुगा तो लोग खा रहे हन, खाई जा रहे हन, भंडारा खत्म नहीं होंदा। कहंदे हन जो पाना सी उसने इक्को वारी पा दिता है। जो किछ पाया सो एका वार, इक्को वारी जो पाना सी। राम को भंडार, मेरे राम को भंडार, खात खर्च इच टोट ना आवे, अंत नहीं हर पारावार। ये शब्द भी असी बाणी दे अंदर पढ़ते हाँ।
राम को भंडार, राम को भंडार, खात करच किच तोट न आवे, अंत नहीं हर पारावार, राम को भंडार, राम को भंडार। सो वो जो परमेश्वर है, जो जिसदा वेस जुगा जुगा तो जुग जुग एको वेस, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੇਸ ਹੈ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ। और कई वेस हैं जो साडे अंदर बैठा है, करम नाम बरनस सुमत, ऐसा परमेश्वर कर कर वेखे सिरजनहार। जो किछ वो कर रहा है, जो किछ हो रहा है, वो कर करके वेख रहा है। सिरजनहार जिसने इस सृष्टि ਨੂੰ बनाया है, जो सिरजनहार है, जिन्हों पाई मेदनी सोई करदा सार। वो जो है उस सारी मेदनी दा, सारी सृष्टि दा सिरजनहार कर करके सब कुछ वेख रहा है। नानक सच्चे की साची कार, उस नानक जी कहते हैं उस सच्चे दी, केड़ा सच्चा, जो आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक उसी भी सच। ऐसा सच्चा, ऐसा परमेश्वर जो है उसकी कार, सच्चे की कार होंदी है सृष्टि चलान दा नियम। संजोग विजोग दो ही कार चलावे, लेखे आवे पाग। वो केड़ी कार है? संजोग विजोग दी कार चल रही है सारी सृष्टि दे अंदर। लोग आके मिलते हैं, विछड़ जाते हैं, फिर मिलते हैं, फिर विछड़ जाते हैं। तो कहने उस परमेश्वर दी सच्ची कार, इत्थे केड़ी कार दी गल हो रही है? संजोग विजोग दी जो कार चल रही, सृष्टि नू चलाण दी, सिरजनहार दी जो एक नियम है उसदा, जो साडे मत्थे दे लेख लिखे जाते हैं, उस भाग अनुसार असी वापस जदों मिलते हाँ आके अपने विछड़े हुए परिवार नू, अपने कर्म पूरे करन जदों असी आंदे हाँ बार बार, और फिर चले जाते हाँ जदों पूरे नहीं होंदे कर्म। ਤਾਂ ਇਹ जो कार चल रही है ना संजोग विजोग दी, ये वाली कार जो है वो सच्चे दी कार है। और असी उस कार दे अंदर जो है उसके हुक्म दे अंदर चल रहे हाँ। फिर वो जैसा हुक्म करदा है वैसा हुंदा है। इस करके असी चूस करना है हमेशा अपने कर्मां नू, अपनी डेस्टिनी नू, जो मेरी डेस्टिनी है, जो मेरे मत्थे दे भाग लिखे जा रहे हैं, इनू असी चूस करना है कि वो कैसे भाग लिखे जान। वो मेरे कर्म, वो मेरी सोच, वो मेरे वचन नू मैं भला बनांदे जावां। असी वो साडे जो भाग लिखे जान वो चंगे लिखे जाएंगे, और उस भागा अनुसार असी फिर जो है परमात्मा दे हुक्म दे अंदर, असी उदी सच्ची कार दे अंदर जो है ਉਹਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੁੜਿਆਰ ਤੋਂ ਸਚਿਆਰ ਦੀ ਜੋ ਰਾਹ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਸੁਖੈਨੀ, ਉਹ ਸੁਖੈਲੀ, ਉਹ ਸਹਿਜ, ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ। आदेश तिसे आदेश, आदि अनील अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेस, जुग जुग एको वेस। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। जो पौड़ियां शुरू होंदियां हन ध्यान तो, उस ध्यान ते जाके सानू समझना है इहदे अंदर जो 4-5 स्टेप दसे हैं। ध्यान दे बाद ज्ञान ते जाना है, ज्ञान दे बाद सानू जो है भक्ति ते जाना है, विस्माद विच जाना है,
ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ ਸਚਿਆਰ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਇਹ ਐਸਾ ਡੰਡਾ ਹੈ ਭਰੋਸਾ, ਐਸਾ ਡੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਰੱਖਿਆ ਕਿਸ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਡੁੱਲ ਨਾ ਜਾਏ। जब असी बार बार चेते रखते हाँ कि मैंने गुरमत अनुसार मैं हुणे जो भी सोच रही हाँ, जो भी कर्म करन लगी हाँ, जो भी बोलन लगी हाँ कि गुरमत अनुसार ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। ये बार बार जदों असी सोचांगे ना कि साडी जो मत सोनी बनती जाएगी और साडे जो सारे कर्म हन वो अच्छे बननगे। और जो प्रतीत दा डंडा है भरोसे दा, वो साड़ी रखिया करेगा, क्षण क्षण रखिया करेगा। तो भरोसे नू हमेशा नाल रखना है, हर क्षण यो रखिया मेरी जो है हर क्षण होंदी रहे। और जो मेरी राह है कुड़ियार तो सचियार बनन दी राह दे विच जो भी विघन आंदे हन, उस विघना तो ये प्रतीत दा डंडा, ये भरोसे वाला डंडा जो है मेरी रखिया हमेशा करता रहे। इस दे डीप जो मीनिंग है उसको समझना है असी, और अपने सोच और अपने बचन और अपने कर्मा ते पहरा देना है। उस पहरे नू, वो पहरा केड़ा है? वो इस यकीन दा, इस भरोसे दा, ये जो डंडा है ये मेरा पहरा है। इस बड़ा बहुत गुरु साहब ने सानू बड़े चंगी तरह सानू सोझी दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि तुसी किस तरह अपने आप नू जो है इस राह ते चलना है। तुसी जो ब्रह्मा विष्णु महेश ये हन, ये करता नहीं हन, करता सिर्फ परमेश्वर है। इस करके हमेशा ये याद रखना है कि करता करतार दृष्टा है, वो सानू हर वेले देख रहा है और उसका वास घट घट दे अंदर है, घट घट वाजे नाद, और वो हर लोक दे अंदर है। आत्मा ते मन साधना दे लई प्रतीत धारण करनी है। ये प्रतीत, ये भरोसा जो है ये साडा ध्यान तो प्राप्त होता है। ध्यान हटिया भरोसा भी हटिया। ध्यान परपक्क करना, अपने मन नू जितन दे वासन, असी पढ़िया ना इन्हां दे विच मन जीत तै जग जीत। मन नू किवें जितना है असी, ये पौड़ियां हन उस दियां। तां ये सानू इस दे नाल प्राप्त होणगियां। भरोसे नाल ध्यान लगदा है। भरोसे नू हमेशा असी प्रतीत करना है अपने अंदर। ध्यान परपक्ता समाधि दे ज्ञान विच लै जांदी है। समाधि कदों लगदी है? जदों साडे विचार घटदे हन, जदों असी विचारां दी जो साडे अंदर दौड़ चलदी है ना, जदों घटदी जांदी है तां फिर सानू ओ समाधि विच लै जांदे हन, ज्ञान विच लै जांदी है, परम पद दी पौड़ी ते लै जांदी है। तुरिया अवस्था परमगत आनंदी जो अवस्था है वो उसते सानू लै जांदी है। इस नाल अंदरले नाल मेल होंदा है और विकारां तो मुक्ति मिलती है सानू। अंदरले नाल, अंदरला कौन है? वो एक परमेश्वर। अंदरले नाल मेल होंदा है और अपने विकारां तो सानू मुक्ति प्राप्त होंदी है। इसनू असी बार बार जो है, जिवें कि असी देखते हैं ना योग साधना, ये साडा योग है। जोगियां नू मत देंदे देंदे गुरु महाराज सानू ये योग सिखा रहे हैं। ये सहज योग है। इसनू असी सहज योग नू असी किवें अपने अंदर धारण करना है। तो जिवें जोगी बाहरले चिन्ह धारण करते हैं, असी अंदरले धार्मिक चिन्ह नू किवें धारण करना है, ये सानू गुरु महाराज योग दी जुक्ति दस रहे हैं। योग हुंदा है परमेश्वर नू प्राप्त करन दी जांचना, अंदर दी इच्छा, साडे अंदर दी जो
ਇੱਕ ਜਾਚਨਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸੁੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਜੋਗ ਨੂੰ, ਜੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿਲਣਾ, ਉਸ ਦੀ ਯੁਕਤੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਕਿਤਨੀ ਸੋਹਣੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਸ ਪੌੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਪੌੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੇ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਚਿਆਰ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਿਡਾਣ ਹੋਰ ਭਗਤੀ, ਵਿਡਾਣ, ਵਿਸਮਾਦ ਔਰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਚਿੰਨ ਕੀ ਹਨ? ਉਹਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਵਿਡਾਣ ਤੇ ਭਗਤੀ ਹੈ ਤੇ ਚਿੰਨ ਹਨ ਸੰਤੋਖ, संतोख रखना हमेशा और मेहनत करनी और लज्जा भी रखनी कि मैं की बोलना है की नहीं बोलना, और ध्यान, मौत दी याद, शरीर नू पवित्र रखना, सिदक यकीन रखना और समभाव मैत्री रखनी कि सारे मेरे जमाती हन। मैत्री दा समभाव, निर्वैरता रखनी, मन दी जित, मन नू जितना इहदे नाल आद अनील अनाद अनाहद गुणा वाले परमात्मा दे नाल असी मिल जावांगे। उस अंदरले दे नाल सिफत सलाहना, पूजा करनी, नमस्कार करना, आदेश करना, याद करना, सिमरन करना, ये सानू दसियां युक्तियां जोग दियां सानू दसियां गुरु महाराज ने। ये सानू हमेशा बार बार याद रखना। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु।